Hello friends, today we discuss about proper preparation, property and uses of nitric acid. It is also most important topic of P block element. Okay, so first we discuss about preparation of HNO3. And first we discuss about preparation of nitric acid. तो चलो फर्स्ट कि नाइट्रिक एसिड मेटल नाइट्रेट where metal is equal to sodium, potassium, rubidium and cesium. But rubidium and cesium nitrate is so costly. So basically we use sodium and potassium nitrate in this reaction. When metal nitrate is react with sulfuric acid, okay, metal nitrate is react with sulfuric acid, it's just ion exchange reaction. It is a first group element, so M is +1 and NO3 is -1. Where H2SO4 gives H plus and HSO4 minus. So this positive with this negative and negative with positive. So H plus with NO3 minus, so it gives nitric acid, where M plus with HSO4 minus, so it gives by sulfate of metal. Okay, the first preparation, nitric acid is obtained from sodium potassium nitrate with reaction with sulfuric acid. It gives nitric acid. Okay, now down, it is not in a book, but above 200 degrees Celsius temperature, it gives Na2SO4. ओके, तो हमको पता होना चाहिए सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वॉलेटाइल एसिड क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं, और जो भी मेटल है उसका बाइसल्फेट रिलीज होता है. पर अगर यही रिएक्शन अबो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो तो वो क्या देते हैं? बाइसल्फेट की जगह सल्फेट देते हैं. डन. चलो, नाउ सेकंड प्रिपरेशन विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन है ना, इट्स नॉन एज ओस्वाल प्रोसेस, which is known as Ostwald process. In Ostwald process, first, what happened? Ammonia is react with oxygen. Oxygen which is obtained from air in presence of PP RH like catalyst. In presence of PT RH like catalyst at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure, where ammonia is react with air, what happen? It gives oxidation process and form NO, nitrogen monoxide. Okay, nitrogen monoxide and H2O. Then तो चलो, in this reaction NH3, nitrogen is -3 and nitrogen is +2, while oxygen is 0 and oxygen is -2. Okay, above reaction is just ion exchange reaction. जो हमने क्या बात की थी, क्लोरीन में बात की थी. यहाँ तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? आयन एक्सचेंज, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, और इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन. देखो यहाँ क्या हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स रेडॉक्स. तो चलो, हाउ मेनी ऑक्सीजन इज हियर? 2. तो फॉर 2 इट्स मल्टीप्लाई बाय 2, 2 into 2 चेंज -4. तो चलो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन is -3 2 +2 यानी 5, and in oxygen 0 to 4. Okay,
That means its NH3 is multiplied by 4, NHO2 is multiplied by 5. Okay? तो चलो बैलेंस कर ले, redox balance. Now audience. So how many mole of hydrogen in this reaction? 4 into 3, 12. Okay? So 6H2O. Clear? So first of all, in Ostwald process, what happens? When ammonia is react with oxygen in presence of PT or RH catalyst at 500 bar Kelvin temperature and 9 bar pressure, it gives oxidation reaction and form NO gas. Now this NO gas is further react with O2 gas. It is a reversible reaction and form NO2 gas, which is a brown gas. Okay? Now, for balancing this reaction, 2 mole of NO react with O2 form 2NO2. Now, in the last step, what happens? NO2 gas is dissolved in a water. Okay? Then it forms nitric acid and further it gave NO gas back, which is further used in this reaction. Okay? Now for 2H 1H 2HNO3. Okay? चलो बेसिकली हम इसको रेडॉक्स से बैलेंस करते हैं. तो इन दिस रिएक्शन NO2 is hydrogen is +4 and +5 and +2. That means a one type of disproportionation reaction or not. तो चलो +4 2 +5 change 1 +4 2 3 2. तो चलो what happened? It multiply by 2, it multiply by 1 because in this change is 2. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. In this change is 1, so इसको 1 से. Okay? Total how many mole of nitrogen? 3. So we use 3 mole of NO2. Okay? चलो बैलेंस करें तो 3NO2 प्लस H2O टोटल कितने हैं? 7 ऑक्सीजन हो गए. 7 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन. Reaction is balanced. By this reaction we get aqueous solution of HNO3 by distillation. By distillation reaction it gives 68% W by V HNO3. It gives 68% W by V HNO3. Now, by dehydration, reaction using H2SO4, it gives 98% W by V HNO3. क्लियर? तो हमें इससे जो मिलता है वो क्या होता है? एक्वियस सॉल्यूशन होता है. तो बाय डिस्टिलेशन reaction it gives 68% pure HNO3, and by dehydration reaction using H2SO4 it gives 98% HNO3. So it is a preparation of nitric acid. Okay, the most important process, which process? Ostwald process is used in a large scale. Okay, in a large scale, which process? Ostwald process is used. The first ammonia convert into NO gas, NO convert into NO2, and NO2 gives HNO3 plus NO. Okay, so this is a preparation of nitric acid. So now properties of HNO3. है ना? तो properties of HNO3, तो in a
gaseous state HNO3 HNO3 is a planar trigonal. HNO3 is in a planar trigonal shape. Done. In a gaseous state, HNO3 is in a planar trigonal shape. So now, as we know, any oxo acid have a one OH and one double bond O. Okay, but now in HNO3, last oxygen, can it is joined with nitrogen by double bond? No. Why? Because maximum valency of nitrogen is 4, because it doesn't have a D. Okay, so it does not form pi bond. So a last oxygen which is joined with a nitrogen, it joined with a nitrogen by coordination bond. By coordination bond. Okay, so either we draw nitric acid like this, or NOH double bond O, single bond O minus and plus. So what is the hybridization of nitric acid? Nitrogen. So the nitrogen valence 5 electron plus 1 single bond. So 6/2. So hybridization is sp2. Okay. The hybridization of nitric acid is sp2. And its shape is planar trigonal. Clear? तो चलो फर्स्ट हो गई स्टेट. अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम कि नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3 does not gives reaction with AU, PT and inert gas. Okay, HNO3 does not gives reaction with gold, platinum and inert gas. Clear? चलो next. Next, aluminium and chromium form inert layer of their oxide with HNO3. Aluminium and chromium form inert, है ना, what inert layer of their oxide with HNO3. तो ये कौन? एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम नाइट्रिक एसिड के साथ क्या, तो कि एक इनर्ट लेयर बनाते हैं. कौन रिएक्शन देता? तो कि गोल्ड प्लेटिनम एंड इनर्ट गैस does not gives reaction. Now HNO3 is strong oxidizing agent and HNO3 is a strong oxidizing agent. तो चलो ये जो मैंने बातें की क्या है, प्रॉपर्टी है, तो आपको बताना है HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ध्यान में रखना, चलो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर ये फॉर नॉट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि जो HNO3 है वो जो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है ना, तो डाइल्यूटेड HNO3 वो किसके साथ, तो कि वो रिएक्ट करता हाइड्रोजन के साथ. ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि जब डाइल्यूटेड HNO3 होता है वो किसके साथ, तो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके
वो क्या करता है कि भाई नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीडेशन के सामने वाले को ऑक्सीडेशन करेगा, खुद क्या रिडक्शन, तो डाइल्यूटेड HNO3 वो किससे रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन से रिड्यूस होता है, और क्या बना सकता है, तो कि वो एमोनिया बना सकता है, N2O बना सकता है, NO बना सकता है, N2O3 बना सकता है, और NO2 बना सकता है। बट कॉन्संट्रेटेड HNO3 बेसिकली क्या करते हैं, तो इट डिग्रेड एंड फॉर्म NO2 गैस, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, तो ये दिमाग में बिठा देना कि बेसिकली नाइट्रिक एसिड जो है वो जो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है तो वो हाइड्रोजन से रिड्यूस होता है, और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो खुद डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये आपके दिमाग में बिठा लेना। और कौन सा गैस वहां कंपल्सरी प्रोड्यूस होगा, NO2 गैस। ओके, तो आगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले दिमाग में बिठा लो कि HNO3 क्या होता है, गैसेस फॉर्म में प्लेनर ट्राइगोनल शेप में, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, वो किसके साथ, गोल्ड, प्लेटिनम और इनर्ट गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसके साथ, तो एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम के साथ इनर्ट लेयर बना देता है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो डाइल्यूटेड हो तो किससे, हाइड्रोजन से रिड्यूस होता है, और जब कॉन्सेंट्रेट हो तो वो क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट आगे। तो रिएक्शन ऑफ HNO3, है ना, रिएक्शन ऑफ HNO3, it product is, in a reaction of HNO3, its product is depends on nature of reactant, temperature and concentration of HNO3. Okay, so in a reaction of HNO3, its product is depend on nature of reactant, temperature and concentration of HNO3। दिमाग में बिठा लेना कि जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट किस पे डिपेंडेंट होती है, तो कि रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो चल पहले हम बात करें किसके बारे में, तो रिएक्शन विथ मेटल। पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल। ओके, तो देखो यहाँ अब आपके पास दो रिएक्टेंट है, फर्स्ट कौन सा है, मेटल। मेटल, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मेटल, फर्स्ट active metal and second is passive metal. And active means reactive and passive means non-reactive. So basically which reduction potential is more negative than hydrogen. Which metal is known as active, which reduction potential is more negative than hydrogen, and which reduction
potential is less negative than hydrogen. Clear? So basically metal, there are mainly two types of metal, active and passive. तो basically active metal किसको बोलते हैं, जिसका reduction potential more than, reduction potential is more negative than hydrogen, and passive किसको बोलते हैं, which reduction potential is less negative than hydrogen. Okay, and second which HNO3. Mainly HNO3 is two types. Either it's a diluted or it's a concentrated. Okay, so we have a total two types of reactant, metal and HNO3. तो चलो first A, reaction of passive metal. So reaction of passive metal. Then passive metal, we take an example of copper, and copper is react with diluted HNO3, and a copper is react with diluted HNO3. First, any metal gives it nitrate with HNO3, it gives copper nitrate plus NO gas plus H2O. Okay, then copper is react with diluted nitric acid, it gives copper nitrate, NO gas and H2O. चलो इसको बैलेंस करते हैं. Copper 0, in this copper plus 2. चलो in this reaction HNO3 nitrogen plus 5 ना. Okay, in NO plus 2. So change 2 and change in oxidation state 3. So this multiply by 3 and it multiply by 2. अब इस साइड ध्यान में रखो. Basically HNO3 is used in this redox reaction. Okay, the 2 mole of HNO3 is reduced into 2 mole of NO, but this HNO3 is also used as an audience. तो देखो यहाँ क्या करना है, 2 मोल तो आपका रेडॉक्स में यूज हो गया है. अब कितने, 3 into 2, 6 NO3 ऑडियंस है. तो 6 NO3 के लिए 6 HNO3 चाहिए और 2 रेडॉक्स वाले. एंड हाउ मेनी मोल ऑफ टोटल, 8 मोल ऑफ HNO3 is used in this reaction. So how many H? 8. So it gives 4 H2O. Balance. Okay. So copper gives NO gas with diluted HNO3, but with concentrated HNO3, what happen? First it fix, any metal is react with nitric acid, gives copper nitrate plus NO2 gas. Okay, तो मैंने बोला ना कि भाई कॉन्सेंट्रेट हो तो फिक्स ही है कि वो क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है और NO2 ही रिलीज होने वाला है. चलो बैलेंस करें. 0 plus 2 plus 5 plus 4. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1. तो चलो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2. तो मीन्स 2 HNO3 इज रिड्यूस इनटू 2 NO2. कभी कभी आपको एक भी पूछ लो कितने मोल रिड्यूस होते हैं, तो 2 HNO3 is reduced into 2 mole of NO2 and 2 NO3 is audience. That means how many mole of HNO3? Total 4 mole of HNO3 is used in this reaction. Okay, so how many mole of H? 4. So how many mole of H2? 2 mole of H2. Clear? So when passive metal, just like copper, also which silver, mercury and Pb gives this reaction because they all are passive. Now, second, with active metal. So with active metal, we take an example of active metal, zinc. Zinc is react with diluted nitric acid. So first, it gives
zinc nitrate plus an active metal gives zinc nitrate plus N2O plus H2. ओके, चलो रिएक्शन बैलेंस करें. 0 plus 2 plus 5 plus 1. Okay, but there are 2 nitrogen, so it's multiply by 2. है ना, तो +10 +2, तो change in oxidation state 2, change in a 10 to 2 8. तो चलो कुछ कॉमन निकाल दे, तो जिंक तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मल्टीप्लाई बाय 4. डन. चलो अब आउट ऑफ हाउ मेनी मोल ऑफ HNO3, 2 mole of HNO3 is reducing to N2O, and 4 into 2, 8 mole of HNO3 is used as iodians. So how many mole of 10 mole of HNO3 is using this reaction. So how many mole of water, 10, so 5 H2O. And when zinc is react with concentrated HNO3, same, it gives zinc nitrate प्लस concentrate gives NO2. आगे हमने बात कर ही ली है, तो ऊपर की तरह ही हो जाएगा कि 0 से +2 +5 से +4, so it's multiply by 2. तो 2 in a reduction and 2 in a audience. तो 4 mole of HNO3 gives 2 H2O. क्लियर. दिमाग में बिठा लेना कि जब डाइल्यूट के साथ एक्टिव रिएक्शन करता है तो N2O प्रोड्यूस करता है, और पैसिव मेटल रिएक्शन करता है तो NO गैस प्रोड्यूस करता है. ओके, क्लियर, डन. तो ये आपको रटनी है, इट्स मोस्ट IMP. चलो यहाँ जिंक की तरह दूसरा कौन हो सकता है, Fe भी चलेगा. ओके, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई चलो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब डाइल्यूट हो तभी टेंशन है, कॉन्सेंट्रेट तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. ओके, तो चलो रिएक्शन HNO3 किस पे डिपेंड होती है, जो प्रोडक्ट है किस पे डिपेंड होती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3. तो रिएक्टेंट में 2 मेटल और HNO3 डाइल्यूट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, मेटल एक्टिव हो सकती है, पैसिव हो सकती है. इट जस्ट फॉर नॉलेज है ना. चलो पैसिव मेटल हो तो डाइल्यूटेड के साथ वो क्या देगा, NO देगा. एक्टिव मेटल हो तो डाइल्यूटेड के साथ वो क्या देगा, N2O देगा. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट. चलो तो नोट कर लेना सिर्फ नॉलेज के लिए कि फिजिकली SN is react with diluted HNO3, it gives tin nitrate plus ammonium nitrate. ओके, tin nitrate plus ammonium nitrate. ये SnNO2 NO3 ट्वाइस भी हो सकता है, और SnNO3 4 भी, क्योंकि SN+2 and +4 आइदर और है ना, SnNO3 4 भी. क्लियर. एंड ये दिमाग में रखना, Mn and Mg diluted HNO3, they gives hydrogen gas. Okay, Mn and Mg with diluted HNO3 gives hydrogen gas. Okay, तो ये बुक में नहीं है पर आपको दिमाग में रखना है. ओके, चलो नेक्स्ट किसके साथ आएगी रिएक्शन, नेक्स्ट आएगी रिएक्शन विथ नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. ओके, तो चलो non-metal does not gives reaction with diluted HNO3. Non-metal
does not give reaction with diluted HNO3. Okay, that means they only react with concentrated HNO3. तो चलो नॉन मेटल में कौन कौन आ सकता है? कार्बन. हम स्टार्ट करें कहाँ से? 14 ग्रुप. 15 में कौन मैं ले सकता हूँ? फॉस्फोरस P4. 16 में एसिड सल्फर. 17 में आयोडीन. एंड मेटलॉइड के एग्जांपल ले लो 15 में से आर्सेनिक एंड एंटीमनी. ओके, तो चलो they just react with concentrated HNO3. तो all non-metal it just react with concentrated HNO3. ओके, तो मैंने आपको बोला था concentrated HNO3 क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो इन सबका ऑक्सीडेशन करेगा, है ना. तो यानी सबका क्या होगा? नेसेंट ऑक्सीजन. तो सबका ऑक्सीजन से क्या कन्वर्ट होगा? दे ऑल आर कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड. दे ऑल आर कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड. बट विच ऑक्साइड? हैविंग अ they all convert into their oxide having maximum oxidation state. And they all are converted into their oxide having a maximum oxidation state. तो कार्बन कन्वर्ट इनटू बिकॉज कॉन्सनट्रेटेड HNO3 क्या देता है भाई? नेसेंट ऑक्सीजन. यानी सबको किससे रिएक्शन करनी है? यानी समझ लिया कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है ही नहीं. इन सबको किससे रिएक्शन करनी है? ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करनी है. चलो कार्बन CO2 बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +4. HNO3 gives NO2 plus H2O. ओके, पर आपको बताइए कि बेसिकली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक एंड दे लविंग टू ज्वाइन विथ वाटर, है ना. दे लविंग टू ज्वाइन विथ वाटर. सो नॉन मेटल ऑक्साइड एंड वाटर गिव्स देयर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड, है ना. उसके सेम नंबर वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो क्या बना देगा? ऑक्सो एसिड बना देगा. ये दिमाग में रखना. तो कहीं आपको ऑक्साइड दिया हो तो भी चलेगा और ऑक्सो एसिड दिया हो तो भी चलेगा. दिमाग में बिठा लेना. चलो हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं. 0 से +4 तो +5 से +4 ही है. तो चेंज 1 चेंज 4 तो मल्टीप्लाई बाय 4. 4 HNO3 gives 2 H2O. चलो बेसिकली P4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट कन्वर्ट इनटू P2O5. बट मैंने आगे बोला ही आपको कि P2O5 आपको क्या देगा? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इक्वल ना. तो P2O5 इज कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्सो एसिड. तो चलो +5 वाला ऑक्सो एसिड क्या देगा? H3PO4 plus NO2 plus H2O. चलो 0 plus 5. How many phosphorus? 4. तो it multiply by 4. तो चलो +20. यहाँ मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट भी दोनों साइड करना होता और यहाँ कोई मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट क्योंकि 0 है. तो चलो कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया? 20. और यहाँ तो फिक्स ये 1 ही है. तो चलो हाउ इट मल्टीप्लाई बाय 20. 20 HNO3 gives 20 NO2. चलो कितने फॉस्फोरस? 4. चलो कितने हाइड्रोजन हुए? 12. बाकी कितने रहे? 8. तो इट गिव्स 4H2O. चलो सल्फर कन्वर्ट इनटू SO3. बट मैंने जैसे बोला SO3 क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करके H2SO4. बेसिकली मैं ऑक्साइड बीच में लिखता हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो ना. यह लिख देता हूं मैं. चलो
ये क्या बनाएगा, यहाँ P2O5 बना देगा, इसके नॉट इंटू। चलो ये H2SO4 पहले क्या बनाएगा, SO3 देन H2SO4। ओके, तो चलो सल्फर 0, सल्फर +6, मैक्सिमम सल्फर की +6 ही होती है ना, HNO3 इंटू NO2 H2O। चलो कितने सल्फर है, 8, just multiply by 8, तो 8 6 48। How many mole of HNO3? 40 mole of HNO3 is used and gives 40 mole of 48 mole of 48 mole of HNO3 gives 48 mole of NO2 and 8 H2SO4। कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 8 इंटू 2 16। कितने यहाँ 48, तो बाकी कितने रहे 32, 16 H2O। डन। चलो आर्सेनिक जस्ट लाइक फॉस्फोरस, ये भाई क्या बनाएगा, यहाँ AS2O3 बनाएगा, सॉरी H2O5 बनाएगा, जो बाद में किस पे कन्वर्ट होगा, H3 ASO4 NO2 H2O। सेम SBP क्या बनाएगा, SB2O5, जो बाद में किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, H3 SB4 NO2 H2O। चलिए 0 2 + 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 5 NO2 बैलेंस। चलो 5 HNO3 5 NO2 बैलेंस। तो बेसिकली 14 से 17 तक तो सबको मैक्सिमम में, तो HNO3 पावर में आ गया, मैं सबको मैक्सिमम बना देता हूं। और जब आयोडीन आया तो आयोडीन किस में कन्वर्ट होता है, I2O5। दैट मींस आयोडीन डज नॉट कन्वर्ट टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट because its maximum oxidation state is +0, okay, but it form +5 ऑक्साइड। तो चलो फर्स्ट 5 वाला क्या बनाएगा, ऑक्सो एसिड HiO3 आयोडिक एसिड, रिमूव क्या होगा, NO2 + H2O। ओके, चलो बैलेंस करें। 2 आयोडीन करने के लिए +5 इंटू 2, change in oxidation state 10, 10 mole of HNO3 gives 10 mole of NO2। so 10H में से 2 तो यूज हो गए, 4H2। क्लियर। दिस ऑल आर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल एंड मेटलोइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सबके नाम पता ही होगा आपको। इट्स कॉल्ड फॉस्फोरिक, क्योंकि हम ऑक्सो एसिड पढ़ के बैठे हैं। इट्स कॉल्ड सल्फ्यूरिक, इट्स कॉल्ड आयोडिक, आर्सेनिक, एंटीमोनिक। क्लियर, ओके। तो इट्स ऑल रिएक्शन ऑफ मेटल, non-metal and metalloid with concentrated nitric acid because it does not react with diluted HNO3. Okay, now next. Now ring test है ना। तो रिंग टेस्ट क्या है, इट इज कंफर्मेशन टेस्ट सिटी ऑफ NO3 minus ion in lab. It is a CT confirmation test of nitrate in lab. Okay. So how it perform? So first take aqueous solution of NO3 minus ion, then add freshly prepare FeSO4 solution in it. Take aqueous solution of NO3 minus ion, then add freshly prepare FeSO4 solution in it. ध्यान में रखना, यहाँ FeSO4 का सॉल्यूशन क्या चाहिए, फ्रेश, क्योंकि अगर वो पुराना होगा तो Fe+2 का किस में, Fe+3 में ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो आपको इंटरफियर करेगा रिएक्शन में। ओके, देन
add concentrated H2SO4 slowly in it. Okay, what happened in it? It gives brown color ring at junction point. It gives brown color ring at junction point. It means NO3 is present. Okay, how it work? तो चलो वो समझते हैं इक्वेशन. तो when we take NO3 minus and then we add Fe plus 2 in it. Okay, then we add sulfuric acid. What happened? Fe plus 3 gives Fe plus 2 gives oxidation and convert into Fe plus 3, and NO3 minus gives reduction reaction and form NO, and other H plus is removed as a H2O. Okay, तो बेसिकली क्या होता है? How many mole of plus 5 to plus 2 change in electron? 3. So 3 Fe plus convert into Fe plus 3. Now NO is produced. So basically Fe plus 2 have a strong attraction with water. So always it is in a hydrated form. So it is always in a complex form, hexaaqua. What happened? NO is produced, is substituted 1 H2O. Okay, NO which is produced in this reaction is substituted 1 H2O. So hexaaqua complex convert into pentaaqua complex, and 1 H2 is substituted by NO, and it form pentaaqua nitrosonium ion 1. ओके, नाइट्रोसोनियम आयन 1. ये जो मैंने नाम लिखा वो आपको कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है, एंड इट गिव्स ब्राउन रिंग ऑफ इट. ओके, तो बेसिकली मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन दिस, इट इज अ +1. व्हाई इट इज अ +1? तो बेसिकली व्हाट हैपन, तो NO is converted into NO plus 1 and 1 electron, and this 1 electron is accepted by Fe plus 2 and converted into Fe plus 1. Okay, due to electron exchange it gives brown color ring. Okay, तो ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रोसोनियम है. ओके, नाइट्रोसिल नहीं है, और Fe क्या है? +1. तो आपको जो ब्राउन कलर मिलेगा वो इसका मिलता है. क्लियर? तो क्या है? इट इज अ सिटी ऑफ NO3 माइनस इन अ लैब. तो कैसे परफॉर्म करना है? तो टेक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NO3, देन ऐड freshly prepared FeSO4 solution in it, then add concentrated H2SO4 slowly in it. तो it gives brown color ring at junction point. जंक्शन पॉइंट यानी समझ लो, मैं समझा दे. तो यहाँ क्या आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NO3 लिया. उसमें आपने क्या किया? FeSO4 ऐड किया. जब अब अंदर H2SO4 ऐड करोगे, यहाँ जो जंक्शन पॉइंट होगा उसका, जहां वो कॉन्टेक्ट में आएगा, वहां क्या करेगा? ब्राउन कलर की रिंग जनरेट करेगा. ओके, तो इट इज अ रिंग टेस्ट. अब यहाँ नोट कर लेना एक्स्ट्रा पॉइंट. तो नोट क्या है? क्योंकि बेसिकली मैक्सिमम बच्चे समझते हैं कि सभी नाइट्रेट रिएक्शन देते हैं, पर कुछ नाइट्रेट ऐसे है. कौन से? बेरियम नाइट्रेट,
calcium nitrate and lead nitrate does not gives ring tester. अब आपके लिए क्वेश्चन मार्क से वाई, आपको ये मुझे बताना है, बराबर, कि बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट ये रिएक्शन क्यों नहीं देते. आपकी बुक में ये बात नहीं बताई, पर आपको दिमाग में रखना है कि सभी नाइट्रेट ये रिएक्शन नहीं देते. तीनों के नाइट्रेट ऐसे है जो ये रिएक्शन नहीं देते. क्लियर. तो ये रिंग टेस्ट खत्म हो गई. चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उसके यूजेस के बारे में. किसके बारे में? यूजेस के बारे में. चलो यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड. ओके, तो फर्स्ट यूज, it is used in a preparation of cellulose nitrate, glyceryl nitrate and TNT like explosive. Clear? It is used in a preparation of cellulose nitrate, glyceryl nitrate and TNT like explosive. TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन. चलो, it is used as an oxidizing agent in rocket fuel. It is used as oxidizing agent. OA means oxidizing agent in rocket fuel. And third, it is used in acid treatment of steel, acid treatment of steel and pyrotechnics and pyrotechnics. Clear? It is a use of nitric acid. Clear? तो ये नाइट्रिक एसिड आपका यहाँ खत्म हुआ. कभी नाइट्रिक एसिड कहाँ, तो सेल्यूलोज नाइट्रेट, ग्लिसराइल नाइट्रेट एंड टीएनटी लाइक एक्सप्लोसिव के प्रिपरेशन में यूज होता है. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रॉकेट फ्यूल. वो यूज होता है एसिड ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में एंड पायरोटेक्निक्स में ये यूज होता है. तो यहाँ नाइट्रिक एसिड का क्या हुआ, यूजेस भी खत्म हुआ. ओके, चलो तो फ्रेंड्स देखो, हमने पूरे के पूरा जो अब तक नाइट्रिक एसिड जो पढ़ा उसको मुझे शॉर्ट में रिकॉल करना है. तो इट्स कॉल अ मोरल ऑफ दिस टॉपिक और स्टोरी. है ना, स्टोरी में से बोलता हूँ इसको, आप उसको टॉपिक भी बोल दो, जो भी है ना. तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है. चलो हमें जो याद रखना है इस टॉपिक में से, फास्टेस्ट, अगर मुझे लास्ट टाइम रिवीजन करना हो तो क्या करूंगा कि अबव 200 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स सोडियम सल्फेट, ammonia, Oswald gives in presence of RHPT, NO गैस, ऑक्सीजन के साथ NO2 देगा, H2O के साथ HNO3 and NO प्रोड्यूस करेगा. HNO3 प्लेनर ट्राइगोनल है, sp2 हाइब्रिडेशन है उसका. HNO3 AuPT और इनर्ट गैस के साथ रिएक्शन देता नहीं है. और HNO3 एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम के साथ क्या देता है, इनर्ट ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है. किसके साथ, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम के साथ. ओके, अब जो हमें याद रखना है, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन. कभी पैसिव मेटल जस्ट लाइक कॉपर, गोल्ड, AgNPB तो डाइल्यूटेड HNO3 के साथ मेटल के नाइट्रेट और NO देंगे. एक्टिव जिंक एंड Fe क्या देगा आपको, N2O देंगे. SN क्या देगा आपको, एमोनियम नाइट्रेट. MnMg क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा. और नॉन मेटल एंड मेटलॉइड
रिएक्शन देते नहीं है. नॉन मेटल एंड मेटलोइड concentrated non-metal and metalloid gives their oxo acid having a maximum oxidation state with यानी चेयर कर देना with maximum oxidation state with concentrate HNO3. ओके, रिंग टेस्ट वो कंफर्मेशन टेस्ट है किसकी, NO3 माइनस की लैब पर. कौन रिंग टेस्ट देता, तो कि कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट रिंग टेस्ट ही देते. HNO3 कहाँ यूज होता है, तो कि एक्सप्लोजिव की प्रिपरेशन में, और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है किसमें, रॉकेट फ्यूअल में. ओके, तो देखो ये जितना हमने जो 3 टॉपिक पढ़ा है अब तक, ऑक्सो एसिड, हेलोजन एंड नाइट्रिक एसिड, ये 3 टॉपिक में से हर साल एवरेज 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में होते ही है. ओके, लास्ट ईयर 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे. ओके, सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पी ब्लॉक. क्लियर? ओके, गुड बाय.